डेथ के ऑलमोस्ट 24 to 36 आवर्स के बाद जो है ये पुट्रीफैक्शन का प्रोसेस जो है और पुट्रीफैक्शन या डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है इट स्टार्ट डेवलपिंग. सो putrefaction is basically the physical decomposition of the body, and it is also known as ultimate fate of all living creatures क्योंकि all the living things have to decompose after death. और जहां पर पुट्रीफैक्शन नहीं होती, जहां पर डिकम्पोजिशन नहीं होती, बेसिकली द पुट्रीफैक्शन इज अरेस्टेड बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन या वेदर या क्लाइमेट की वजह से जहां पर नहीं हो सकती, वहां पर ममिफिकेशन और एडिपोसियर फॉर्मेशन के जो प्रोसेसेस हैं, डिकम्पोजिशन जो होती है वो आपके ब्लड में का डिकम्पोज होता है, सीएसएफ डिकम्पोज होता है, ऑकुलर फ्लूइड जो है वो उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है आफ्टर डेथ. Now these delayed changes provide basically more certain diagnosis of death. So this is one of the medical legal importance of death, one of the surest sign of death. Okay, and as they are progressive in nature, they also have estimation period after death. So once you talk about the medical legal importance of process of putrefaction, then you should know that it is basically the surest sign of death, and it also helps in estimation of the period or estimation of time after death. So as I have already told you that it is one of the late signs of death. Putrefaction basically begins when rigor mortis visually ceases, and it is most absolute sign of death or surest death. So this is the process of decomposition by which dead body is broken into its smaller components and its conversion from organic to inorganic state. So ऑर्गेनिक कंपोनेंट, तो जब आपकी आफ्टर डेथ जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू inorganic components by the process of putrefaction or by the process of decomposition. So during the process of decomposition, there is dissolution of the body tissues into gases, liquids, and salts, and this is the ultimate fate, and it is surest sign of death. So basically, what is the medical legal importance of putrefaction? Always remember that it is surest sign of death, and you can estimate the time since death by the process of putrefaction. अब जो ये आपका ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक स्टेट में जो बॉडी की कन्वर्जन है, बेसिकली इसमें कौन कौन which are responsible to cause putrefaction. One is known as autolysis, which can also be called as self-destruction, and the other is bacterial action of microorganisms. Now we will discuss these processes one by one. First, we will discuss about autolysis. It is the softening and liquefaction which occurs by the digestive action of the enzyme released from the cells, lysozymes, after death. It can only be prevented by freezing. So ऑटोलाइसिस का प्रोसेस जो है इवन जो है ना स्टीराइल बॉडी में भी हो जाएगा. इसमें बैक्टीरियल एक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, किसी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता. इट इज बेसिकली सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल. होता क्या है कि जो आपके लाइसोजाइम्स हैं वो आपके जो है वो दीज आर रिलीज आफ्टर डेथ, डाइजेस्टिंग द सेल. ठीक है. सो ऑटोलाइसिस में आपकी कोई भी बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, और इसको प्रोसेस को आप प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं? इट कैन ओनली बी प्रिवेंटेड बाय फ्रीजिंग.
अब आपको पता लग गया होगा कि जो बॉडीज जो हैं जिनकी बरियल में टाइम होता है उनको फ्रीजिंग उसमें चैम्बर्स में क्यों स्टोर किया जाता है, टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑटोलाइसिस. The second process which is involved in putrefaction or decomposition is bacterial action. So after death, the bacteria which are normally inhabiting the body, they soon invade the tissues and the blood, which is the excellent medium for their growth. Most of the bacteria come from the bowel and the Clostridium welchi predominates. And if the death is due to bacterial disease, then putrefaction is rapid in onset and आपको जो है यू शुड नो कि जो आपकी आफ्टर डेथ जो है जो आपका बैक्टीरिया विच इज इनहेबिटेंट इन क्लोस्ट्रम इन बॉवल विच इज बेसिकली क्लोस्ट्रिडियम विल्चाई, जो है वो प्रीडोमिनेट करता है बैक्टीरियल एक्शन को. और बेसिकली होता क्या है कि जो आपका इन्वेडिंग बैक्टीरिया है जो कि आपकी बॉवल में ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट, वहां से आप habitating the body or it invade the tissues and the blood which is the best medium for their growth. So जहां जहां ब्लड सप्लाई जाती है ये उसके थ्रू जो है टिश्यूज को और ऑर्गन्स को इन्वेड करता है और जो है वहां पर बेसिकली बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जो है वो बॉडी को इन्वेड करता है. ठीक है. और एंड अगर जो है डेथ आपकी इट इज ड्यू टू सम इन्फेक्शन, तो ये जो प्रोसेस है ज्यादा जो है वो फास्टर होगा बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया वुड बी प्रेजेंट इन द बॉडी, जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया जो है वो जल्दी इन्वेड कर लेंगे टिश्यूज और जो है ये प्रोसेस जो है ये इट विल बिकम फास्टर. अब कौन कौन से माइक्रोन ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपके पुट्रेफैक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं. इन लिविंग पर्सन दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी इन लार्ज नंबर बट रिमेन अंडर द कंट्रोल बट and they become virulent and they enter the blood vessels and spread throughout the body. So ये प्रोसेस मैं आपको पहले बता दिया है, पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि जो आपका बॉडी में जो बैक्टीरिया है इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी इन लार्ज इंटेस्टाइन और इन बॉवल. तो वहां से ये जो है ड्यूरिंग लाइफ जो है ये बैक्टीरिया जो है ये आपका अंडर कंट्रोल होता है, यानी इसका एक्शन जो है वो इसका सिर्फ पॉजिटिव एक्शन होता है फूड की डाइजेशन में और जो है ये अंडर कंट्रोल ऑफ द बॉडी होता है जिसकी वजह से कि बाकी जो है टिश्यूज में इसकी इन्वेजन नहीं हो सकती. बट आफ्टर डेथ इट स्टार्ट इन्वेडिंग द अदर टिश्यूज और ये बेसिकली ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है और तमाम टिश्यूज बॉडी टिश्यूज को इन्वेड करता है एंड स्टार्ट द बैक्टीरियल एक्शन. Now how the putrefaction will progress. तो जो है समझने के लिए you should understand the steps of putrefaction. So the first step is color changes, second is production of gases, then is the pressure effect of the gases, and then maggots will appear in the body, and then is the other sequelae or manifestation जिसमें आपकी जो further जो है वो आपकी जो होती है बॉडी की जो है डिकम्पोजिशन बॉडी ऑर्गन्स की जो है फर्दर यानी जो आप और अल्टीमेटली जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी बोन्स जो हैं वो बचती हैं, बाकी जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो सारे डिकम्पोज हो जाते हैं. Now the process is subdivided into 3 stages which can be known as stage 1, stage 2 and stage 3. Now we will discuss about these stages in detail one by one. First we will discuss about the stage 1 of the putrefaction or decomposition. This is involved हैं जो steps हैं उनमें सबसे पहले आपका जो step है वो color change, that is color changes. So externally there will be appearance of the greenish discoloration over the cecum and the flaps.
बेसिकली जो आपकी ग्रीनिश डिस्कलरेशन है वो स्टार्ट होती है आपकी राइट आइलिड फोसा से। जो पुट्रीफैक्शन का प्रोसेस जो है वो सबसे पहले इनिशिएट होता है आपका राइट आइलिड फोसा में। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो आपकी इंटेस्टाइन है, स्पेशली जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पर बैक्टीरिया और आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन लाइफ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, वहां पर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। तो वहीं से बैक्टीरियल एक्शन स्टार्ट होता है और वहीं से जो है इनिशिएट होता है आपका कलर चेंज, जो कि जो है विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ पुट्रीफैक्शन, एंड दिस इज द इंडिकेटर ऑफ एंट्री ऑफ द बॉडी इनटू पुट्रीफैक्शन। तो ग्रीनिश डिस्कलरेशन अगर अपीयर हो जाती है राइट आइलिड फोसा में या फ्लैंक्स में, तो इट इज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ। Second, there is greenish discoloration, which will gradually spread to the whole abdomen. The color will gradually changes from the greenish to the black. और बेसिकली होता क्या है इस प्रोसेस में, जो आपका हेमोग्लोबिन है वो कंबाइन करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से और बना देता है सल्फ मेट हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ग्रीनिश और ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाती है बॉडी की। और इसके अलावा जो है ना वो यानी एक जो है एक टिपिकल जो उसकी H2S की स्मेल होती है वो भी इट स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द। So the first sign of the putrefaction is the greenish discoloration of the lower abdominal skin. Then it appears on the second or third day after the death, but may even appear in 24 hours in hot weather. तो जो you should also know कि जो आपका जो putrefaction का process है ये hot climate में जो है ये it become faster। ठीक है, जबकि cold climate में जो है ये इसका प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होना जो है ये इसका पुट्रीफैक्शन। सो अगर गर्म यानी हॉट हॉट वेदर है तो 24 आवर्स में जो आपकी ग्रीनिश डिस्कलरेशन है इन लोअर एब्डोमेन वो अपीयर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका वेदर जो है वो कोल्ड है तो इट विल स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द सेकंड और थर्ड डे आफ्टर डेथ। यूजुअली it is seen first on the right side of the abdomen over the cecal area where the contents of the bowel are more fluid and are full of bacteria. तो ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि वहां पर जो आपकी बाउल या लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज ऑलरेडी आपका जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का ये इनिशिएट। Now it will spread to the whole body. Now what is the basic rule of spread of putrefaction and which organs will start putrefying first? First, receiving rich blood supply. जो आपका बैक्टीरिया है वो स्प्रेड करता है बेसिकली ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो जहां पुट्रीफाई होंगे और जो आपकी जो सोर्स ऑफ बैक्टीरिया यानी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के जो करीब जो नियर बाय ऑर्गन्स हैं उनमें ज्यादा जल्दी जो है पुट्रीफैक्शन इनिशिएट होगी, बिकॉज जो बैक्टीरिया है उसको ज्यादा जल्दी जो है वो इन्वेड कर लेंगे उन टिश्यूज को और उन ऑर्गन्स को। The veins, so जो है अब next क्या होगा? The veins will become prominent on the chest, shoulder, and groins and are seen as bluish network because of its specific fat. So incision of the vein shows that the vein are filled with the gas bubbles and hemolyzing RBCs. This marbling is due to diffusion of the hemoglobin into the tissues along the line of superficial veins. सॉरी, तो जो आपके मैंने बताया है कि जो आपका बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होता है बेसिकली थ्रू ब्लड। तो आपकी वेन्स जो है वो सबसे पहले इन्वेड होंगी बैक्टीरिया से। ब्लड को जो है वो करेगा यानी हेमोलाइजिंग आरबीसी यानी ब्लड को जो डिकम्पोज करेगा, जिसकी वजह से जो आपकी वेन्स हैं दे विल बिकम प्रोमिनेंट ऑन द चेस्ट, शोल्डर एंड ग्रॉइंस। जो आपकी सुपरफिशियल वेन है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी और उनका एक स्पेसिफिक एबॉर्सन पैटर्न बनता है जिसकी वजह से इसको तो आप कहते हैं मार्बलिंग। मार्बल्स की तरह, जिस तरह मार्बल्स में लाइंस होती है इसी तरह आपकी बॉडी यानी डेड बॉडी के ऊपर लाइंस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं एंड इट इज नोन एज मार्बलिंग। So show that they are filled with gas bubbles. ठीक है,
हेमोग्लोबिन और की जो है डिकम्पोजिशन होती है, और वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो जिसकी वजह से वो सल्फ मेट हेमोग्लोबिन में जो है वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लास बबल्स भी अपीयर होते हैं, और इसका कलर भी जो है वो ग्रीनिश डिस्कलरेशन, ग्रीनिश और या ब्लैकिश हो जाता है ब्लड का। और दिस मार्बलिंग इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द हेमोग्लोबिन इनटू द टिश्यूज along the line of superficial vein। जो है मार्बलिंग आपको नजर आएगी। So this is how the marbling will appear. As you can see कि आप टिपिकल यानी वो देख लें आपके जो है जहां जहां सुपरफिशियल वेन्स रन कर रही हैं वहां पे ब्लैक 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 पैटर्न, जिग पैटर्न यानी एबॉर्सेंट पैटर्न आपको नजर आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह का पैटर्न अगर आप देखें मार्बल्स के ऊपर होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मार्बलिंग। Again you can see marbling in the superficial veins over the shoulder, in the flats। So marbling will basically appear जो है initially on the root of the neck, ज्यादा prominent आपको neck के ऊपर नजर आती हैं, over the shoulders, उसके अलावा over the groins, and they will become visible as blue or purplish lines, and due to the pigments from the decomposing blood passing through the blood। इस वजह से है क्योंकि जो आपका जो सल्फ मेट हेमोग्लोबिन है वो ब्लैकिश, जिसकी उसका कलर ब्लैकिश होता है, जिसकी वजह से जो ये ब्लड है, ये जो वेन्स हैं आपकी, इनकी भी कलरेशन जो है वो they will look purplish or black। Now veins, when you will give incision to that veins, so you will see that they are filled with gas bubbles and hemolyzing blood। Now the process of the marbling commences at 24 to 48 to 72 hours after death। So this is how you can estimate the time since death by the process of putrefaction। You can have an idea कि इस body की death को कितना time गुजर चुका होगा। So this is again a very important medical legal importance of putrefaction। The condition owing to its mosaic or arborescent pattern is known as marbling। Next stage is skin slip stage, which occurs after basically 3 to 4 days after death। Of the skin become loosened, and although the skin is apparently normal, but its surface layer can be rubbed off easily with the pressure to leave behind the moist pink base called skin slip। जिस तरह आपका वो छाला नहीं बनता एक पानी वाला, बिल्कुल उसी टाइप का एक अपीयरेंस के ना एक यानी वो बॉडी जो है वो बॉडी एक अपीयरेंस देता है। और अगर आप उस पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करें तो वो जो स्किन है वहां से स्लिप कर जाएगी, और उसके नीचे जो होगा जो यानी जो स्किन का एरिया होगा, इट विल अपीयर मॉइस्ट एंड पिंक, differentiated from the scars and antemortem abrasions। And these can be easily decided because there will be no vital reaction in the skin slip, but it will be difficult to differentiate from postmortem scars। Now, the skin from the hands and feet may peel off in the form of gloves or stocking, and it is very helpful for getting the fingerprints। तो ये सिंगल जो स्किन स्लिप का साइन है बेसिकली ये 3 to 4 डेज में आपका पेयर हो जाता है। और जहां पे जब आपको यानी एक अननोन बॉडी मिल रही है और उस पर ये स्किन स्लिप का साइन है, तो आप एब्रेजन और एंटीमॉर्टम बर्न, और वो आप इजीली डिफरेंशिएट करते हैं बाय द प्रोसेस, यानी कि वाइटल रिएक्शन इसमें नहीं होगा। देयर वुड बी एब्सेंस ऑफ वाइटल रिएक्शन इन दीज स्किन स्लिप्स और दीज ब्लिस्टर्स व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर डेथ। और यानी आपको इजीली आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई आपको रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, रेड लाइन नजर नहीं आएगी। जो इन्फ्लेमेशन के तमाम जो आपको साइंस नजर आते हैं वो वहां पर एब्सेंट होंगे यहाँ पर। तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट। और अगर यानी मजीद अगर वन डे गुजर जाए स्किन स्लिप साइन को, देन द स्किन ऑफ द फ्रॉम द हैंड्स एंड फीट कैन बी पील ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्लव्स और स्टॉकिंग। यानी पहले तो स्किन स्लिप साइन होता है, तो उसके बाद अगर एक दिन और मजीद गुजर जाए तो ये बिल्कुल स्किन इतनी लूज हो जाती है कि अगर आप उसको बिल्कुल पील ऑफ कर सकते हैं। और अगर अननोन बॉडी है तो आप ये स्किन जो है ये यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द फिंगरप्रिंट। So this is यहाँ से देखें आपके बिल्कुल स्किन जो है वो स्लिप कर गई है, और यहाँ से आपको वो
यानी मॉइस्ट सा वो जो है नीचे वाला एरिया वो आपको नजर आ रहा है। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं स्किन लूज हुई हुई है, बिल्कुल ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, और अगर आप इस पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें यहाँ पे तो अगेन द स्किन वुड स्लिप। हियर यू कैन आल्सो सी। अब आप यहाँ से देखेंगे ये जो साइन है ये आपको बर्न्स में भी नजर आते हैं। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट। आपको इस तरह की नजर नहीं आएगी और वाइटल रिएक्शन का कोई साइन आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए आपको मार्बलिंग भी नजर आ रही है और स्किन स्लिप भी नजर आ रही है। Next is the stage of blistering. Now the blisters will be formed on the skin surface which are incompletely filled with the blood and they will stain watery fluid with putrid odor. जो blisters जो आपको नजर आएंगे यानी जो उसमें जो है ये डेड बॉडी में, तो ये आपके बेसिकली स्किन स्लिप के बाद अपेयर होते हैं या उसके साथ साथ ही यानी एडजेसेंटली अपेयर हो जाते हैं ब्लिस्टर्स जो हैं। और अगर आप उन ब्लिस्टर्स को जो है इंसिजन देते हैं दे वुड बी इनकम्प्लीटली फिल्ड विद द ब्लड स्टेन वाटर फ्लूइड, और उसकी एक पुट्रिड ऑर्डर होगी। पुट्रिड यानी उसकी एक जिसे कहें आप सड़ी हुई यानी एक वो पुट्रिड ऑर्डर टिपिकल जो है वो होती है। एंड दे विल बस्ट इजीली लिविंग बिहाइंड द सेम काइंड ऑफ द स्लिप। आप उनको जो है स्लिप यानी अगर आप उनको बर्स्ट करेंगे तो आप जो नीचे से स्किन है वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी आपकी स्किन स्लिप में यानी जो है पिंकिश मॉइस्ट सी वो नजर आती है, बिल्कुल वैसी ही आपको नजर आएगी। नाउ द गैसेस व्हिच विल एस्केप फ्रॉम द ब्लिस्टर इज मीथेन, अमोनिया, phosphorated hydrogen and carbon dioxide, which is responsible for the offensive order of the putrefaction. Putrefaction की typical बहुत बुरी order होती है और फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैसेज हैं। ये आपका टिपिकल जो पुट्रिड ऑर्डर है बॉडी का, डिकम्पोजिंग बॉडी का, ये आपको ये वो इसकी वजह से, इन गैसेस की वजह से इस बॉडी में से एक टिपिकल और जो है पुट्रिड ऑर्डर आएगी। So this was the stage 1 of the putrefaction. Next is the stage 2. Now what will happen in stage 2 of putrefaction? There will be production of the gases within 24 to 36 hours after death. So we have discussed कि कौन कौन सी गैसेस जो प्रोड्यूस होंगी, जिसमें आपकी अमोनिया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन है, ये सब मीथेन है, और इसके अलावा जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैसेस जो है ये प्रोड्यूस होती हैं आफ्टर 24 तो विद इन 24 to 36 आफ्टर डेथ। और इन गैसेस की वजह से देयर इज प्रोडक्शन ऑफ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ जो स्मेल होगी, और गैसेस पुट्रिड गैसेस जो है प्रोड्यूस होती हैं हॉलो विस्ट्रास में भी, सॉलिड विस्ट्रास में भी और बिलो द स्किन। सो बिलो द स्किन तो ब्लिस्टर बना देते हैं ये, और इसके अलावा हॉलो विस्ट्रास और सॉलिड विस्ट्रास में भी ये गैसेस प्रोडक्शन होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ पुट्रिफैक्शन। सो इन 18 to 48 hours after death the gases will collect in the hollow viscera. They will cause false rigidity and they will cause थी आपकी जो है राइगर मॉर्टिस विच वॉज ड्यू टू द, क्यों होता है आपका राइगर मॉर्टिस को डेवलप होता है? राइगर मॉर्टिस होता क्या है? बेसिकली रिजिडिटी ऑफ द मसल्स। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि आपकी एनर्जी एटीपी डिप्लीशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो दे विल फॉर्म अ जेल लाइक सब्सटेंस, और वो आपस में जो है ना इंटरडिजिटेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो रिजिड हो जाती है। लेकिन जो आपकी फुट प्रोडक्शन ऑफ गैसेस इन द बॉडी, और वो गैसेस इतनी हो जाएंगी बॉडी में डेवलप कि दे विल एक्सर्ट सम कंसिडरेबल प्रेशर and they will cause rigidity in the body. गैसेस कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था। मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, आपकी अमोनिया है, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये इन गैसेस की प्रोडक्शन की वजह से जो है वो पुट्रिफैक्टिव रिजिडिटी प्रोड्यूस होती है।
production of pressure effects of these gases. The gases will gradually increase in quantity, and due to this, the pressure effect on there will be the pressure effect on various tissues. Now, what are those pressure effects? There will be blotment of the features which will occur in 36 to 48 hours after death. तो बॉडी में जो है गैसेस डेवलप होती हैं, गैसेस डेवलप होने की वजह से प्रेशर इफेक्ट आएगा, जितनी भी बॉडी में है, यानी बॉडी के जो फीचर्स हैं उनमें ब्लॉटमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से फेस आपका स्वेलन हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन वुड बी डिफिकल्ट, टंग, लिप, नोज, आईलिड्स, चीक्स वुड बी डिस्टेंडेड, ठीक है, यानी बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे में कोई चीज भरी हुई है, एंड द फेस विल बिकम ब्लूइश ग्रीन मास, so identification would not be possible. Tongue will be pushed between the teeth, and in females the breast will become swollen, and the में आपको इस यहाँ पर आपको जो जहाँ पे ब्लॉटमेंट स्टेज है बॉडी की, वहां पे आपको डिफरेंशिएट क्या करना है कि बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बॉडी पे बहुत ज्यादा वायलेंस किया गया, उसकी टंग बाहर निकली हुई है, आंखें खुली हुई हैं, आंखें बाहर को आई हुई हैं, लेकिन ये सब आपको डिफरेंशिएट करना है कि जो है दिस इज ड्यू टू प्रेशर इफेक्ट ऑफ द गैसेस which are produced after death during the stage of putrefaction. You can see all the features are distended and bloated. ठीक है, आपकी जो टंग है वो बाहर आई हुई है, आईलिड्स वगैरह डिस्टेंडेड है, फेस स्वोलन है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वायलेंस हुआ हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड जो है वो प्रेशर इफेक्ट इन गैसेस का प्रेशर इफेक्ट है, वो दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ द एरियाज ऑफ द हाइपोस्टेसिस। आपने पढ़ा था कि जो हाइपोस्टेसिस है वो इट विल बिकम फिक्स्ड आफ्टर पुट्रेफैक्शन स्टार्ट होती है, तो जो फिक्सेशन है ये जो है देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ द एरियाज ऑफ द हाइपोस्टेसिस। व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द पुट्रेफैक्शन there will be liquefaction of the clotted blood. जो आपका blood था वो पहले clot हो गया था, वो liquefy हो जाता है, and due to the pressure of the duodenal gases there will be shifting of the hypostasis in any direction. होता क्या है, जब आपकी body जो है वो लेट हो जाता है और जो है हाइपोस्टेसिस जो है फिक्स, यानी जो आपकी जो है पोस्टमार्टम लिविडिटी वो फिक्स हो जाती है, लेकिन जब पुट्रेफैक्शन स्टार्ट होती है तो अगेन ब्लड विल लिक्विफाई ड्यू टू हेमोलिसिस ऑफ द ब्लड, ब्लड हेमोलाइज होगा और देयर विल बी लिक्विफैक्शन ऑफ द क्लॉटेड ब्लड। और इसके अलावा फिर जब ब्लड लिक्विफाई हो जाएगा तो इस पे जब प्रेशर इफेक्ट आएगा गैसेस का, ड्यूडेनल गैसेस का, तो इट विल शिफ्ट, so there will be shifting of the areas of hypostasis. अब जब ब्लॉटमेंट हो जाएगी तो ब्लॉटमेंट हो जाती है फेस पे और उस पे, तो फेशियल फीचर्स जो हैं वो इतने यानी उनकी हालत बिगड़ जाती है कि आइडेंटिफिकेशन विल बिकम डिफिकल्ट, आईज विल बी टाइटली क्लोज्ड और एंड देयर विल बी स्वेलिंग ऑफ द आईलाइड्स। इसके अलावा चीक्स आपके पफी हो जाते हैं, लिप्स। This is how the body will look like in blotment phase. ठीक है, next is the stage 3 of the putrefaction. Now what processes will occur in the stage 3 of the putrefaction? There will be the distension of the abdomen due to the gases in the stomach and intestines, and blood-stained fluid and froth will come out from the nose and mouth. The stomach contents will come out through the mouth. Feces will come out from. Feces can be expelled by the pressure of the gases. Hairs and nails can be easily pulled out and can be detached. So these signs will appear, ठीक है, in distension or after blotment or distension stage.
होता क्या है, अब आपकी जब गैसेस जो है उन यानी डेवलप हुई, उनका प्रेशर इंक्रीज हुआ, पहले तो आपकी ब्लॉटमेंट हुई, उसके बाद डिस्टेंशन होती है एब्डोमेन की, और फाइनली इतनी गैसेस का प्रेशर, और इसके अलावा जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, इट विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द orifices लाइक नोज, ईयर्स, आईज एंड फ्रॉम द माउथ। इसके अलावा जो ब्रेस्ट और स्कॉटम है वो हैवीली बैलून हो जाती हैं। फीसेस विल कम आउट फ्रॉम द रेक्टम। फीटस अगर है बॉडी में तो इट विल कम आउट। ठीक है, और एट दिस स्टेज द हेयर्स एंड नेल कैन बी इजीली क्रश्ड। Heart and stomach will also be pushed upward, and they will result in the extrusion of the fluid and froth from the mouth and the nose. So blood tinged fluid will come out from the orifice. So this is how it will appear in case of putrefaction due to pressure effect of gases. ये देख रहे हैं क्या putrefaction set हुई हुई है सारी आपकी, और there is oozing of blood tinged fluid from the orifices, from the nose. The genitals will become swollen due to pressure effect of the gases, and there will be the emptying of the heart due to increased fluidity of the blood, and the heart will become empty. ठीक है, ये सारा तो हो गया आपका पुट्रिफेक्शन का। नेक्स्ट आपका क्या होगा, पुट्रिफेक्शन यानी आपकी गैसेस भी डेवलप हो गई, आपके जो है बैक्टीरियल एक्शन भी स्टार्ट हो गया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो आपका प्रोसेस है entomology. This is basically the study and knowledge of the insects and flies, about their habitat and life cycle, which invade the body tissues. This is very important. Now, there would be appearance of the maggots. So a putrefied material basically attract flies and they will move over the body. Flies will lay their eggs in 18 to 36 hours, especially in open wounds, natural orifices, just nose, mouth, eyes, vagina, anus. Larva will appear, then they will convert into pupa. इसके बाद जो है adult जो है वो fly बन जाएगी. And the time period basically जो ये पूरे cycle को लगता है, it varies with the type of the fly and the temperature of जो है climate temperature कैसा है और type of fly कैसी है, ये उस पर depend करता है कि उनके life cycle का. Now the knowledge of these flies is known as forensic entomology. So what is the life cycle of the, it helps to estimate you about the time since death. So अगर आपको लाइफ साइकिल का पता होगा, you can have an idea of the time since death. So क्या होता है, फ्लाइज जो है वो बेसिकली इन्वेड करती हैं बॉडी टिश्यू 24 to 36 आवर्स आफ्टर डेथ। इसके बाद जो है ये एग्स ले करती हैं 18 to 36 आवर्स आफ्टर डेथ पे। इसके बाद लार्वा विल अपीयर एट द 24 आवर्स आफ्टर 24 आवर्स, यानी इसके टाइम पीरियड के 24 आवर्स के बाद लार्वा जो है वो डेवलप हो जाता है। और उसके बाद जो एडल्ट फ्लाइज है वो अगेन जो है वो इट विल डेवलप in 4 to 5 days. So this is the complete life cycle of the fly. So if you have the idea of life cycle of the fly, और अगर आपको टाइप पता है कि कौन सी फ्लाई की है और आप उसके लाइफ साइकिल को स्टडी कर लें, तो यू कैन हैव एन आइडिया कि बॉडी जो है, यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ द टाइम सिंस डेथ ऑफ द बॉडी. Now what are the factors which affect the rate of, basically दो तरह के फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड सेकंड इज द इंटरनल फैक्टर. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स. उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर. सो जो सबसे ज्यादा जो यानी ऑप्टिमल टेम्परेचर है फॉर द प्रोसेस ऑफ द फ्लोटिफिकेशन इज अबाउट 70 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर ये टेम्परेचर है तो दिस इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर फ्लोटिफिकेशन. और देयर वुड बी नो फ्लोटिफिकेशन. और अगर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हो गया, then the fluids will be dried up again, there would be no bacterial action, और
बेसिकली जो है वो जो है मसल्स जो है उनका जो फ्लूइड है इट विल ड्राई एंड ममिफिकेशन विल अप. तो बहुत हाई टेम्परेचर में इट विल फेवर mummification. So the best temperature or the optimal temperature for the process of the putrefaction is 70 to 100 degree Fahrenheit. Important for the process of putrefaction. If agar presence of air hai, or then it will increase or enhance the process of putrefaction. और अगर absence है air की, अगर air present नहीं है, तो putrefaction जो process है, it will be slowed or it will be decreased. Now, what is the Casper dictum? It states that the rate of the putrefaction of the dead body by keeping the temperature same is almost equal for 1 week in air, 2 weeks in water, and it is subject to great variation. So what is Casper dictum? वो ये बताता है कि जो अगर आपका टेम्परेचर सेम है तो रेट ऑफ पुट्रीफैक्शन जो है वो यानी बॉडी एयर में जो है वो 1 वीक है, जितनी पुट्रीफैक्शन का प्रोसेस यानी वो होगा 1 वीक है एयर में, बॉडी विल पुट्रीफाई इन 2 वीक्स इन वाटर एंड इट विल टेक 8 वीक्स टू पुट्रीफाई व्हेन द बॉडी इज बuried in deep soil. Of moisture, which promotes the putrefaction process. If the more moisture is present, then there will be presence of more bacteria, and there is multiplication of bacteria, and the process of putrefaction will be enhanced. अब क्लोथ्स जो हैं वो भी बहुत रोल प्ले करते हैं. अगेन अनदर फैक्टर विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ putrefaction. So initially it maintains the temperature and helps in putrefaction. इनिशियली जो है ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और पुट्रीफैक्शन को एक तरह से इनहांस करते हैं, लेकिन जब बाद में ये जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द फ्लाइज, इन्वेजन ऑफ द फ्लाइज. इसके अलावा जो मैनर ऑफ बरियल है इट आल्सो इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ पुट्रीफैक्शन. अगर एयर टाइट कफन है तो पुट्रीफैक्शन विल बी डिलेड. इफ द बॉडी इज विदाउट कफन देन द पुट्रीफैक्शन विल सेट अर्ली. इन डीप ग्रेव पुट्रीफैक्शन इज डिलेड. इन शैलो is buried in lime, then the putrefaction will be delayed. If the body is buried in waterlogged area, then the putrefaction will start early. Putrefaction buried in dry or sandy area, जहाँ पर temperature increased है, moisture नहीं है, वहाँ पर mummification set हो जाएगी. और अगर body जो है वो बरी होगी in damp and porous land, जहाँ पे moisture है लेकिन जो है ना यानी इस तरह एयर का वो नहीं है ज्यादा, it will favor adipose formation. अब ये थे आपके external factors which affect the rate of putrefaction. Now there are also some internal factors which affect the rate of process of putrefaction. So first is, in the most important, is the age. इन्फेंट स्टिल बॉर्न्स और स्टेराइल जो बॉडीज हैं उनमें पुट्रीफैक्शन जो है वो सेट लेट होती है, जबकि ओल्ड लेस फैटी लोग जो में ओल्ड लोगों में या लेस फैटी लोग हैं उनको पुट्रीफैक्शन जो है लेट डेवलप होती है. अगर बॉडी जो है वो फ्लैबी है, फैट है बंदा, तो वहां पर पुट्रीफैक्शन जो है वो जल्दी से. फैटी बॉडी में अर्ली पुट्रीफैक्शन होगी. इमेसिएटेड जहाँ पे यानी वेट लॉस और मसल मास जो इतना नहीं है वहाँ पर लेट पुट्रीफैक्शन सेट होगी. और इसके अलावा म्यूटिलेटेड बॉडीज में अर्ली पुट्रीफैक्शन होती है. Which we have discussed. Third is the sex. It has very little influence on the rate of putrefaction. लेकिन you can say that females dying early after childbirth, उनमें early putrefaction होगी, लेकिन females dying of septicemia उनमें भी early होगी. यानी जो females हैं जो कि during delivery या उसमें after delivery जिनकी death होती है वहाँ पे early putrefaction होने का चांस. प्रेगनेंसी से अगर जो है फीमेल की डेथ हुई है तो वहाँ पर भी putrefaction जो वो early.
इसके अलावा जो मोड ऑफ डेथ है वो भी जो है प्रोसेस ऑफ पुट्रेफैक्शन को इंटरफेयर करता है। जो जहाँ पर इन्फेक्शन या कोई डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज से अगर डेथ हुई है, तो वहां पर जो है दे विल बी मोर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द बॉडी और पुट्रेफैक्शन विल स्टार्ट अकरिंग। ठीक है। अगर एनीमिया है तो ब्लड लेस होगा ऑफ बैक्टीरिया। सो अगर ब्लड नहीं है या कम है तो पुट्रेफैक्शन जो है वो लेट होगी। अगर कोई वेस्टिंग डिजीज है मसल्स की, एट्रोफी है जिसमें मसल्स की, वहां पर लेट पुट्रेफैक्शन होगी। पॉइजन कैन डिले पुट्रेफैक्शन। अगर पॉइजन दिया गया है यानी द कॉज ऑफ द डेथ इज ड्यू टू पॉइजन, तो वहां पर पुट्रेफैक्शन जो है वो डिलेड होती है। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी और जिंक जो है वहां पर उनमें पुट्रेफैक्शन जो है वो बहुत डिलेड होती है। अगर सडन डेथ है और गुड हेल्थ है, यानी सडन थी, so then putrefaction will be delayed. Then putrefaction of a body immersed in water. It is relatively much slower than in body exposed in air. As the body holds gas in the lungs, it assumes the characteristic posture in the water. Once the body is out of the water, rate is higher. So अगर बॉडी वाटर में है तो वहां पे पुट्रेफैक्शन डिलेड होगी। लेकिन अगर गीली बॉडी जो है, बॉडी नहीं वाटर लॉग्ड है और लंग्स बॉडी को निकाल दिया गया, तो उस बॉडी में पुट्रेफैक्शन जो है वो पुट्रेफैक्शन रेट जो है वो बहुत हाई होगा। एनी क्वेश्चन? You can raise your hands if there is any query or any question. Hopefully, inshallah, the next lecture would be a face-to-face session, or inshallah, we will welcome you. With this, the lecture will end. Thank you, beta.